Dear students, in this fifth lecture of dielectrics and ferroelectrics, we are going to study the polarization catastrophe, the soft optical phenomena, and Landau theory. The polarization catastrophe. As we know that there are two ways of the ferroelectric crystals, displacive transitions and the polarization catastrophe. The polarization catastrophe actually in the polarization catastrophe, the local electric field caused by the polarization increased faster than the elastic restoring force on an ion in the crystal, thereby leading an asymmetrical shift in the position of ions. Higher order restoring forces will limit the shift to a finite displacement. The occurrence of ferroelectricity in many perovskite structure crystals suggests that this structure is favorably disposed to the polarization catastrophe. We consider first the simple form of the catastrophe theory, supposing that the local field at all atoms E local actually E plus 4 pi by 3 P, here E actually representing the macroscopic electric field and P is the polarization in CGS system, and another form is the in SI system. Actually we have an idea that the elastic restoring forces of the phonons phonons dynamics in the atomic structures. Uh, it works fastly when we applied electric field, and the restoring forces are actually relatively less than the applied electric field forces. That's why the charges are displaced from their original positions. As we know that the Clausius-Massotti relation, lastly, in previous lecture we derived epsilon minus 1 over epsilon plus 2 is equal to 4 pi by 3 sigma j and j alpha j. We shifted the some values and derived the value of epsilon, the dielectric constant, 1 plus 8 pi by 3 sigma j and j alpha j over 1 minus 4 pi by 3 sigma j and j alpha j. That is equation number A, where alpha j is the electronic plus ionic polarizability and J is the number of ions per unit volume. The dielectric constant becomes infinite and permits a finite polarization in zero applied field when sigma j and j alpha j is equal to 3 by 4 pi. इट मीन्स के जब हमारे पास ये सिग्मा जे एन जे अल्फा जी की वैल्यू 3/4 पाई होगी तो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पोलराइजेशन हमारे पास मिलेगी, और जिसकी वजह से हम ऐसे क्रिस्टल्स को क्या है फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स कहते हैं, विच इज़ द कंडीशन फॉर पोलराइजेशन कैटास्ट्रोफे. द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इन इक्वेशन ए इज़ sensitive to small departures of sigma j and j alpha j from the critical value 3/4 pi. इसको हम जो क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं कि इसके अगर बराबर होगा तो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास क्या है जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन हमारे पास मिलेगी. 4 पाई बाई 3 सिग्मा जे एन जे अल्फा जे इजिकल टू अगर हम लोग लेते हैं 1-3 के बराबर सी जे सिस्टम में, यहाँ पर एस वेरी वेरी लेस देन 1, देन इक्वेशन ए बिकम्स एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1+2 4 पाई बाई 3 सिग्मा जे एन जे अल्फा जे ओवर 1-4 पाई बाई 3 सिग्मा जे एन जे अल्फ़ा जे. और अब इस सिग्मा जे एन जे अल्फ़ा जे को हमने लिखा 1-3 के इक्वलेंट. ठीक है, तो अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 1+2 इंटू 1-3 ओवर 1 - तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आती है 3-6 ओवर 3 ये हम लोग यहाँ से 3 से 3 कामन लेके कट जाता है तो 1-2 तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू फर्दर इसको जब अलग अलग डिवाइड करते हैं, हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास आता है 1/s-2. और अब अगर हम 2 को इग्नोर करते हैं तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा 1/s के. Now suppose that near the critical temperature S varies linearly with the temperature. अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ऐसे टेम्परेचर पे जब कि फेरो इलेक्ट्रिक जो पैरा इलेक्ट्रिक में चेंज हो जाएंगे, और जस्ट लाइक फेरो मैग्नेटिक्स जो है विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर जो है चेंज हो जाते हैं पैरा इलेक्ट्रिक्स में. तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या है फेरो इलेक्ट्रिक्स जो है वो पैरा इलेक्ट्रिक्स में चेंज हो जाएंगे. तो एस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू T - Tc. Tc is critical temperature, T normal temperature divided by zeta.
where zeta is the constant and epsilon is equal to zeta by T minus Tc, which is close to the observed temperature variation in the पैराइलेक्ट्रिक स्टेट। तो जब T इज इक्वल टू टी सी होगा तो उस वक्त हमारे पास क्या है कि एप्सिलॉन की वैल्यू होगी जीटा बाई T माइनस टी सी। Soft optical phonons. We know that the Leiden-Sachs-Taylor rule, LST rule, actually है omega t square over omega l square is equal to epsilon of omega over epsilon of 0. Here omega t is the frequency of a transverse optical phonons near zero wave factor and omega l is the low optical frequency. Epsilon of 0 is the static dielectric constant and epsilon of infinity is the high frequency dielectric function. The static dielectric constant increases when the transverse optical phonon frequency decreases. When omega t is equal to 0, the crystal is unstable because there is no effective restoring force. अब हमें पता है कि जब फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के अंदर हमारे पास जो होता है वो अकॉस्टिकल फोनॉन्स होते हैं, जबकि बियॉन्ड द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन या बाउंड्री से जो है फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री से हमारे पास जो है वो हमारे पास शुरू हो जाते हैं ऑप्टिकल फोनॉन्स। और ऑप्टिकल फोनॉन्स जो है इट मीन्स आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए और जो जिन पर अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी तो क्या है वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसके नाकाफ़ी हो जाएगी उस सिचुएशन में। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू ज़ीरो द क्रिस्टल इज अनस्टेबल बिकॉज देयर इज़ नो इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स। If the transition to ferroelectric state is first order, we uh, if the transition to ferroelectric state is first order, we denote field omega t is equal to 0 or epsilon of 0 is equal to infinity at the transition. The LST relation suggests only that epsilon of 0 extrapolates to a singularity at a temperature T naught below Tc. तो क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो जो टेम्परेचर टी नॉट है उसके ऊपर क्या है ये हमारे पास सिंगुलरिटी वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास क्या है जब ऑप्टिकल फोनॉन्स की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी यानी कि लो फ्रीक्वेंसी जब उसकी होगी तो उस वक्त हमारे पास क्या है जो कि हमारे पास आखिरी लेवल जो है हमारे पास फर्स्ट ब्रिलियंट जोन जो है वो फर्मी लेवल हमारे पास आता है। उस लेवल के ऊपर जो जो हमारे पास क्या है सेकंड ब्रिलियंट जोन और फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के दरमियान बाउंड्री है वहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो हाई ऑप्टिकल फोनॉन्स हमारे पास मिलते हैं और उसकी लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके हमारे पास क्या है कि हमारी पास ये वैल्यू जो है वो मिलेगी सॉफ्ट ऑप्टिकल फोनॉन्स की। The association of a high static dielectric constant with a low frequency optical mode is supported by experiments on strontium titanate SiTiO3. According to the LST relation, if the reciprocal of static dielectric constant has a temperature dependency, तो जो हमारे पास स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलता है लो ऑप्टिकल फोनॉन फ्रीक्वेंसी पर वो हमारे पास क्या है 1 over epsilon of 0 proportional to T minus T naught. तो then the square of the optical mode will have similar temperature dependency. ओमेगा टी स्केयर उस वक्त हमारे पास क्या प्रोपोर्शनल होगा टी माइनस टी नॉट के, जो कि हमारे पास इक्वेशन ए में हमने जैसे लिखा है इफ़ ओमेगा एल इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जबकि हमारे पास क्या लो ऑप्टिकल फ्रॉम फ्रीक्वेंसी जो है टेम्परेचर के से जो है वो इंडिपेंडेंट जब होगी उस वक्त। लैंडौ थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन और नेचर ऑफ फेज ट्रांजिशन। अब हमारे पास फेज ट्रांजिशन जो है वो दो किस्म की होती हैं, एक होती है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन और दूसरी होती है सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन। तो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन ऐसी ट्रांजिशन होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या है फेज ऑफ मटेरियल जो फर्स्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है, तो लेकिन चेंज के दौरान हमारे पास क्या है लेटेंट हीट जैसे कि एग्जिस्ट कर रही होती है। जैसे कि हम सॉलिड से जो है वो लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड से जो वेपर पोजीशन में जाते हैं गैसीय स्टेट में जाते हैं, तो एक हमारे पास लेटेंट हीट होती है और फंक्शन जो हमारे पास क्या कंटिन्यूस नहीं रहती, ठीक है। नंबर डेंसिटी जो वो सडन चेंज इस तरह हमारा उसमें आता है, तो कंट्रोल पैरामीटर या ऑर्डर पैरामीटर में कंट्रोल पैरामीटर के चेंज करने से। जबकि जो सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन होती है वो ऐसी ट्रांजिशन है जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि कंटिन्यूस चेंज आ रही होगी,
जैसे हमारे पास क्या है फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक्स, ठीक है। अच्छा, अब फेरो इलेक्ट्रिक विद द फर्स्ट ऑर्डर बिटवीन द फेरो इलेक्ट्रिक एंड पैरा इलेक्ट्रिक स्टेट इज distinguished by discontinuous change of the saturation polarization at the transition temperature. The transition between normal and superconductivity state is a second order transition. We can obtain a consistent formal thermodynamics theory of the behavior of a ferroelectric crystal by considering the form of the expansion of the energy as a function of polarization P. हम लोग क्या है कि पोलराइजेशन को हम लोग क्या है जो फ्री एनर्जी की फॉर्म में जब हम लिखना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वी अज्यूम दैट द लैंडो थ्योरी लैंडो फ्री एनर्जी डेंसिटी एफ इन वन डायमेंशन में बी एक्सपेंडेड फॉर्मली एज। अब हमारे पास जो लैंडो फ्री एनर्जी है वो एफ जो है दैट इज फंक्शन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर एनर्जी है वो किसके बराबर है, माइनस ई पी प्लस जी नॉट प्लस 1/2 G2 पी स्केयर प्लस 1/G2 P4 प्लस 1/2 6 G6 P6 पी पावर 6 प्लस डायनर। तो ये हमारे पास क्या है जो एनर्जी और हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई किया पी, और उसके बाद हमारे पास जो सीरीज़ ओपन हो रही है ये इवन पावर्स रख रही है, इसमें आउट पावर्स नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई और फिजिकल पैरामीटर की जो है वो चेक करना चाह रहे हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है, तो हमारे पास पोलराइजेशन की बजाय हम वो फिजिकल क्वांटिटी को ले गए आएंगे जहाँ पर, जबकि यहाँ पर हमने क्या है पोलराइजेशन को पी यहाँ पर लिया हुआ है। वेयर द कोफिशिएंट्स, इसको हम इक्वेशन 1 दिया नाम हमने, वेयर द कोफिशिएंट्स जी एन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर the series does not contain terms in odd power of p if the unpolarized crystal has a center of inversion symmetry. The value of p in thermal equilibrium is given by the minimum of f as a function of p. तो अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन हमारे पास क्रिस्टल का है अनपोलराइज्ड है तो उस वक्त हमारे पास क्या है कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। द वैल्यू ऑफ पी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय द मिनिमम ऑफ एफ एज अ फंक्शन ऑफ पी। तो जो कि फंक्शन होगा पोलराइजेशन का और उसकी मिनिमम एनर्जी हमारे पास क्या है वो फंक्शन बन रही होगी थर्मल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एफ एट दिस मिनिमम डिफाइंस द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एफ that is function of temperature energy. The equilibrium polarization in an applied electric field E satisfies the extremum condition. अब एक्सट्रीमम कंडीशन क्या है, दैट इज़ एट द बाउंड्री कंडीशंस, मींस के जो चेंज है बाउंड्री कंडीशन पर जाके हमारे पास चेंज क्या है वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो पार्शियल है पार्शियल पी वो हमारे पास क्या जीरो आना चाहिए एक्सट्रीमम कंडीशन के हिसाब से, इजिकल टू अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस पी G2P प्लस G4P³ प्लस G6P5। तो हमारे पास क्या पावर्स एक कम हो जाएंगी और जो हमारे पास पहले से कोफिशिएंट्स साथ थे उनके साथ क्या है वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो कट जाएंगे उनके साथ। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई। टू ऑब्टेन द फेरोइलेक्ट्रिक स्टेट we must suppose that the coefficients of the term in p square in equation 1 is passes through 0 at some temperature T naught। तो हम लोग क्या कहते हैं कि फेरोइलेक्ट्रिक स्टेट हासिल करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम लोग जो कोफिशिएंट्स हैं पी स्क्वायर टर्म के इक्वेशन 1 के अंदर वो पास थ्रू हो 0 एट सम टेम्परेचर T naught के ऊपर, जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर है जहाँ पर क्या फेरोइलेक्ट्रिक जो पैराइलेक्ट्रिक में चेंज हो रहे हैं। तो G2 इज इक्वल टू गैमा ऑफ T माइनस T naught। तो वेयर gamma is the taken as positive constant and T naught may be the equal to or lower than the transition temperature. A small positive value of G2 means that the lattice is soft and close to instability. The negative value of G2 means that the unpolarized lattice is unstable. तो अगर स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब क्या है कि लैटिस जो है सॉफ्ट है और क्लोज टू इंस्टेबिलिटी है, जबकि नेगेटिव वैल्यू क्या है हमें वो रिप्रेजेंट करती है कि G2 की कि क्रिस्टल जो है वो अनपोलराइज्ड है और अनस्टेबल है। नेक्स्ट हम लोग इस इक्वेशन को अगले लेक्चर में बताएंगे कैसे ये इक्वेशन हमारे पास रिप्रेजेंट करती है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या फिर सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन है।